Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on a merger and acquisition with discounted cash flow method. So let us see data given in this scenario. So we are given AB Limited engaged in production of agro products wishes to diversify its business by acquisition of existing companies engaged in similar operations. The CEO of AB Limited determines valuation of business of existing companies so by using discounted cash flow approach, which is also called DCF approach. The CEO has collected information regarding some companies for acquisition as given below. So different companies का डाटा आपके पास अवेलेबल है. नंबर वन है स्ट्रॉबेरी लिमिटेड. The cash inflow after taxes of Strawberry Company are estimated at rupees 15 lakh per annum in future. Strawberry Limited has currently total assets of rupees 50 lakhs with 20% of the total assets being financed with debt funds. The pre-acquisition weighted average cost of capital Strawberry Limited is 12% per annum. So second is given for Plum Limited. The cash inflows of Plum Limited are estimated at rupees 12 lakhs for the coming year, which will grow at a rate of 20% per annum for future 2 years and will be on a level thereafter. So each rupee investment in cash inflows will require rupees 0.70 incremental investment in assets. Cost of capital of company is estimated at 12% per annum. So number third is we are given data for Cherry Limited. Cherry Limited has paid up equity share capital rupees 500 lakhs of rupees 10 each. The company has outstanding debt of rupees 600 lakhs and bank balance of rupees 1312 lakhs. The projected cash flow after tax are as follows. तो आपको नेक्स्ट 5 ईयर के कैश फ्लोज नहीं है आफ्टर टैक्स रुपीज लैक्स में चल रहे हैं. कैश फ्लोज will perpetuate at a constant growth rate of 8% per annum beyond fifth year. तो फिफ्थ ईयर के बाद ये constant growth rate के बेस पर कैलकुलेट होंगे. The cost of capital of company is estimated at 20% per annum. कुछ मीन्स आपको मेंशन किया है एबी कंपनी ने एक्विजिशन करनी है डिफरेंट कंपनीज की और डिफरेंट कंपनीज के डाटा हमारे पास अवेलेबल है. Let us see different MCQ they are asking. So number one they are asking calculate maximum purchase price that AB Limited would be willing to pay to shareholders of Strawberry Limited for its acquisition. तो आपको डिटरमिन करना है कि मैक्सिमम प्राइस जो हम रेडी हैं पे करने के लिए फॉर एक्विजिशन ऑफ स्ट्रॉबेरी लिमिटेड. तो स्टार्ट करते हैं डाटा देखते हैं वन बाय वन. So first is our MCQ number 1. So in this case we have to determine what is the maximum price payable. So maximum price payable to shareholders of स्ट्रॉबेरी लिमिटेड. उसके लिए देखिए आपको डाटा मेंशन किया है फॉर स्ट्रॉबेरी कंपनी का. सो इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एट 15 लाख पर एनम. सो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्सेज सो दीज आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 15 लाख पर एनम. तो ये फ्यूचर में आपके कांस्टेंट रहेंगे. सो दिस विल बी कांस्टेंट सो फॉर होल लाइफ ऑफ this company. Then we are also given that so this company has total assets of rupees 50 lakh. तो इस कंपनी की टोटल एसेट्स हैं एट प्रेजेंट रुपीज 50 लैक्स एंड आउट ऑफ दिस 20% आर फाइनेंस विद डेट फंड्स. तो इट मीन्स इस टोटल एसेट्स में आपके डेट फंड्स भी हैं इज 20%. सो दिस विल बी 20% ऑफ रुपीज 50 लैक्स. That is rupees 10 lakhs. And weighted average cost of capital of strawberry company is 12%. It means this is called required return. This is also called weighted average cost of capital or KO. This is given 12%. अब आपको डिटरमिन करना है मैक्सिमम प्राइस विच यू आर रेडी टू पे टू शेयर होल्डर्स ऑफ स्ट्रॉबेरी कंपनी. तो उसके लिए पहले आप डिटरमिन करते हैं व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस of strawberry company. So that is equal to present value of future expected benefits. Benefits हैं आपके cash flow. So it means this is equal to present value of future expected cash flow.
विच आर गिवन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो अब ये जो कैश फ्लोस हैं ये आपके कांस्टेंट रहेंगे पूरी लाइफ, इट मीन्स ये परपेचुअली बन जाएगी। तो इसका फार्मूला बन जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आर। सो कैश फ्लो आर गिवन रुपीज 15 लाख अपॉन आर इज गिवन 12%। It means this is called capitalized value of future cash flows. This is 15 divided by 12%. रुपीज 125 लैक्स, रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं। बट दिस इज कॉल्ड टोटल वैल्यू, पर आपको कैलकुलेट करनी है अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर से। तो उसमें से आप माइनस कर दीजिए अमाउंट ऑफ डेट। डेट कितना है कंपनी का? सो डेट इज ओवर 10 लैक्स। तो इसमें बैलेंस आ जाएगी आपकी किसी वैल्यू फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से। तो दिस इज कमिंग टू बी रुपीज 115 लैक्स। तो मैक्सिमम प्राइस होता है जो भी आपकी वैल्यू बन रही है बिजनेस की फॉर इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विल बी द मैक्सिमम प्राइस पेबल टू शेयर होल्डर से। तो लेट अस सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। इन दिस केस आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next we have second MCQ. So in this case we have to calculate maximum purchase price that AB Limited would be willing to pay to acquire Plum Limited. अब आपने डिटरमिन करना है बाकी मैक्सिमम प्राइस विच इज पेबल टू एक्वायर प्लम लिमिटेड। तो लेट अस सी प्लम लिमिटेड का देखो आपको डाटा मेंशन किया है। कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एट 12 लाख फॉर करंट ईयर। तो दिस इज डाटा ऑफ प्लम लिमिटेड। इट मीन्स फॉर 0 टाइम पीरियड। So it's a cash flow are given, cash inflows. So these are also rupees in lakhs. Rupees आपके हैं lakhs में. So these are 12 lakhs. Then it is given that which will grow at a rate of 20% per annum for future 2 years. So next 2 years में अब आपकी growth होगी इसमें. First and second year growth will be 20%. एंड इट विल बी ऑन लेवल देयर आफ्टर। उसके बाद फिर आपके ये कांस्टेंट हो जाएंगे। इट मीन्स फ्रॉम 30 टू इन्फिनिटी। तो इट विल बिकम कांस्टेंट। एंड फर्दर वी आर गिवन ईच रुपी इंक्रीज इन कैश फ्लो विल रिक्वायर 0.70 इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। इसमें जो भी आपका कैश इनफ्लो इंक्रीज हो रहा है तो उसका हमने 70% इन्वेस्ट करना है एसेट्स में। इट मीन्स आपको ये भी मेंशन की है बट जबर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका आउटफ्लो बना जाएगा इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। जिसे जो ₹70 पर रुपी ऑफ कैश इनफ्लो इनको कर देंगे जितना आपका इंक्रीज होगा कैश इनफ्लो में। इट मीन्स दिस इज 70%। एंड फर्दर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा कंपनी की 12%। इट मीन्स अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस विच इज पेएबल फॉर एक्विजिशन of this company that is equal to our value of business of this company. So this is equal to value of business of a company. Value business of company is present value of expected cash flows. तो अभी टेबल ड्रॉ करके हैं क्योंकि इसमें कैश फ्लो आपके चेंज हो रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में। तो लेट अस शो द टेबल। So 1 and 2, then it will be at the end of 2 we will get the terminal value. So what will be cash flows? रुपीज हैं आपके लैक्स में। इनिशियली कैश फ्लोज आर 12, इसमें ग्रोथ ऐड कर लीजिए 20%। सो जैसे 12 प्लस 20% 14.4 प्लस 20% 17.28। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट हो जाएंगे। इट मीन जो सेकंड ईयर का कैश फ्लो है इट विल बिकम कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये परपेचुअली बन जाएगी। इसको डिवाइड कर दीजिए डिस्काउंट रेट विच इज गिवन 12%। तो किसी कहा कि टर्मिनल वैल्यू एट एंड ऑफ सेकंड ईयर। इट मीन्स दिस विल बी कैश फ्लो फ्रॉम थर्ड ईयर अप टू इन्फिनिटी। और फर्दर आपको मेंशन किया है जितना आपका इंक्रीज हो रहा है कैश फ्लो में उसका 70% आपने इन्वेस्ट करना है। तो माइनस कर लीजिए चेंज इन एसेट्स। एसेट्स में आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए फर्स्ट ईयर में कितना कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है जैसे -12 जैसे 2.4। तो 2.4 का आपने करना है 70%। इसी तरीके से आप देखिए सेकंड ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है 17.28 माइनस 14.4 जैसे 2.88। तो उसका आप कर लीजिए 70% इन्वेस्ट।
फिर अब थर्ड ईयर में आपका कोई इंक्रीज नहीं है कैश फ्लो में, तो इट मीन्स ये आपके बन जाएंगे कैश इनफ्लोज, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं CIF। तो दिस इज इक्वल टू 2.4 इंटू 0.7 माइनस 14.4, दिस इज 12.72। सिमिलरली 2.88 इंटू 0.7 माइनस 17.28, दिस इज 15.264, and terminal value 17.28 divided by 0.12, this is 144. So now we can apply PV factor at the rate of required return, which is cost of capital of company is 12% for 2 years. So this is 0.893 and 0.797, and this is also second year 0.797. So now what is the total value of business, which is your maximum price payable. So this amount is coming, so 12.72 times 0.893, then 15.264 times 0.797, and 144 times 0.797. So this is coming to be rupees 138.30 lakhs. This is maximum price which we are ready to pay. So now you can see which answer is correct. Option B is correct. So next we have third MCQ. So in this we have to calculate total value of acquisition of a company Cherry Limited. तो अब आपको यदि चेरी लिमिटेड एक्वायर करनी है उसकी टोटल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब इसमें आपको देखो डाटा मेंशन किया था, इसका करंट शेयर कैपिटल दिया है, आपको डेट भी दिया है और बैंक का बैलेंस भी है, प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज भी है। इट मीन्स लेट अस सी व्हाट इज टोटल वैल्यू ऑफ चेरी लिमिटेड। तो पहले इसका फार्मूला देखते हैं। So this will be equal to present value of future cash flows और प्लस यदि आपके पास कुछ प्रेजेंट में कुछ कैश बैलेंस होता है या कोई एसेट्स रिलाइज हो रही हैं तो वो भी हम कंसीडर करते हैं, जिसमें आपको मेंशन किया है प्रेजेंट कैश बैलेंस। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। कैश फ्लो देखो आपको मेंशन किए हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं। सो कैश फ्लोज आर गिवन इन फर्स्ट ईयर 1760, यानी कि जो 480, देन 640, 860, देन इन फिफ्थ ईयर के 1170। फिर आपको मेंशन किया है कैश फ्लो विल परपेचुएट एट ए कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ 8% पर एनम बियॉन्ड फिफ्थ ईयर। अब फिफ्थ ईयर के बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगी 8%, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी फिफ्थ ईयर में, बेसिक कहा गया टर्मिनल वैल्यू इन फिफ्थ ईयर। तो कैश फ्लो है आपका 1170, उसमें ग्रोथ ऐड कीजिए 1.08, तो दिस बिकम्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ सिक्स्थ ईयर। इसको कीजिए डिस्काउंट डिवाइडेड बाय KO। अब इसमें जो रिक्वायर्ड रिटर्न है जिसे जो 20%, तो माइनस 0.20% माइनस 0.08, ये आपकी टर्मिनल वैल्यू बन जाएगी। तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस 1170 प्लस 8% डिवाइडेड बाय 12%, 10530। नाउ लेट अस अप्लाई PV फैक्टर at the rate of 20% which is required return। तो किसी की 0.833, 0.694, then 0.579, 0.482, and for fifth year 0.402, and this value is also in fifth year, so PV factor same। So this will be our total value, total present value। So this one is coming, so 1760 into 0.833, then 480 times 0.694, then 640 times 0.579, then 860 times 0.482, then it is 1170 plus 10,530 times 0.402. So this total is coming 7288। इसमें आप ऐड कर लीजिए प्लस कैश बैलेंस विच इज अवेलेबल। तो दिस इज गिवन टू बी 1312। So it means
This is the total value of business, rupees. So 8600 lakhs. We are asking what is the total value of acquisition of this cherry company. So you can see which option is correct. Answer is option number A. So next we have a fourth MCQ. In this we have to calculate the maximum price payable to shareholders of Cherry Limited for its acquisition by AB Limited. अब आपने देखना है कि मैक्सिमम प्राइस हम पर शेयर कितना है जो हम रेडी हैं इसको पे करने के लिए. लेकिन सी MCQ नंबर 4. तो मैक्सिमम प्राइस विच इज पेबल पर शेयर गेट इक्वल टू, उसके लिए अब आपको इक्विटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो यू कैन राइट प्राइस पर शेयर विच वी आर रेडी टू पे टू दिस कंपनी चेरी कंपनी. तो आपने देखो टोटल वैल्यू कैलकुलेट की है 8600 लैक्स. उसमें से डेट माइनस कर लीजिए. तो इसका डेट हमें मेंशन किया है 600 लैक्स. ये माइनस हो जाएगा किसी की डेट. लेकिन बैलेंस रहेगी आपकी इक्विटी वैल्यू. डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं चेरी कंपनी के 500 लाख रुपीज कैपिटल है डिवाइडेड बाई 10. 50 लाख शेयर्स हैं आपके. ये क्या शेयर्स. So this will be maximum price which we are ready to pay per share. So this is coming 8600 minus 600 8000 divided by 50 rupees 160 per share. तो मीन्स पहले आपने टोटल वैल्यू कैलकुलेट की उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्विटी वैल्यू में. देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस पर शेयर. So let us see in this case which option is correct. So here answer is option number B. So option B is correct. In this lecture, we have discussed a case scenario based on merger and acquisition with discounted cash flow method. Further topics we will continue in further lectures. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.